are the organic compounds having ऑक्सीजन लिंकेज. एक ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसीज है वो दो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है. मींस आपने अल्कोहल जो पढ़े, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ वन एल्काइल ग्रुप विद वन H. ओवर दिस ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, देन दैट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल. And if both of these valencies of oxygen are satisfied by two alkyl groups, then that particular functional group is known as ether. So first of all, ethers का classification है. Ethers can be classified into two types: simple ethers, simple or symmetrical. And दूसरी तरफ है mixed or unsymmetrical ethers. Now what are simple ethers? If these two alkyl groups, ये दोनों जो R हैं अगर same type के, for example dimethyl ether, dimethyl ether, so when both of the R groups are of same types, then those ethers are called simple ethers or symmetrical, में symmetry है molecule में. And mixed ethers में होंगे एक दोनों R group different. For example, if we have CH3O C2H5, CH3O C3H7. So in this way, both R groups if different, then we say them as unsymmetrical ethers. Clear? And these are symmetrical. ये simple classification clear है. दूसरा एक classification और भी है जिसमें aliphatic और aromatic ethers हैं. Aromatic ethers will be having one benzene ring, aliphatic simple chain वाले. मेन आपको यही समझना है सिंपल ईथर्स क्या. नॉमेनक्लेचर में भी जो कॉमन सिस्टम है ना, उसमें सिंपल ईथर्स का नेम डाई एल्काइल ईथर्स होता है. दीज आर नेम्ड एज इन कॉमन सिस्टम डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर या डाई नॉर्मल प्रोपाइल, व्हाटएवर इज द ग्रुप, दोनों साइड पे सेम होगा. तो डाई वर्ड के साथ आपने उसका नेम दे देना कॉमन, मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर इट. ठीक है. And in mixed or unsymmetrical ethers, the common name is alkyl ethers है common name. but अब वो दो ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो जो शॉर्टर ग्रुप है उसको आपने एक्चुअली इसमें आपको अल्फाबेटिकली यू कैन राइट. जैसे ये एक तरफ मिथाइल है, प्रोपाइल है, ठीक है, तो इट विल बी एम पहले आएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर. और अगर इथाइल ग्रुप है मिथाइल इथाइल, देन ई विल कम फर्स्ट, इथाइल मिथाइल. So in this way, these are simply known as alkyl ethers. अब alkyl जो दो बार आ रहा है, alkyl alkyl you can say, so that you need to write alphabetically. Which one will be alphabetically come earlier? उसके according आपको common system बता रही हूँ. IUPAC name is alkoxy alkane. So we'll come next towards IUPAC names of ether. Nomenclature of ethers. First simplest ether is alkyl group है, तो simple smallest alkyl group is methyl. तो and दोनों साइड पे एक alkyl compulsory ether में, तो simplest ether is dimethyl ether. Common name, and here you can write IUPAC name. Common name is dimethyl ether. IUPAC name, IUPAC नेम में जो ईथर्स का जनरल IUPAC नेम है, दैट इज alkoxy alkane. Alkoxy alkane is the general IUPAC name of ethers. And alkoxy आपने वो ग्रुप उठाना है प्रीफिक्स में जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप हो, इफ बोथ आर डिफरेंट. मिक्स्ड ईथर्स के अंदर जो छोटा ग्रुप होगा दैट विल बी यूज्ड एज प्रीफिक्स alkoxy, और जो एल्केन नेम जाएगा वो लॉन्गर चेन को जाएगा. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज भी हम नेम चेन जो सेलेक्ट करते हैं वो पेरेंट नेम होता है. तो हियर पेरेंट नेम इज एल्केन एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड एज अ प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स में आपको शॉर्टर वाला ग्रुप रखना है. इफ टू
different groups are present. अगर same है तो कोई problem नहीं है. For example, here we have both same groups. तो एक को आप methoxy word बना दो और एक से alkane बना दो. तो both have one carbon, methoxy ethane. Next, suppose if we have one methyl and one ethyl group. Common name will be ethyl methyl ether. IUPAC name methoxy ethane, because the shorter group is to be taken as prefix. अब यहाँ पे numbering की कोई requirement नहीं है because only 2 carbon atoms are there. Next is now in this chain you have a possibility कि वो alkoxy group यहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है? तो आप 3 carbon atom से आपको numbering start करनी होती है. तो numbering will obviously start from that side where the functional group is attached. 1, 2, 3 numbering होगी. Okay, अब first पे आपके पास group लगा है methoxy. So it will be 1 methoxy propane and I common name मिथाइल प्रोपाइल. अब ये प्रोपाइल भी कौन सा है? नॉर्मल हो सकता है, आइसो भी हो सकता है. इट इज नॉर्मल प्रोपाइल. IUPAC name 1 methoxy propane. Any doubt in this IUPAC name? 1 पे methoxy group attached है, because otherwise it can have at second position also. So wherever possibility of isomers are there, you need to give numbers. Next example. Now I have changed that normal propyl group to isopropyl group. Common name will be methyl isopropyl ether. या isonione alphabetically order में काउंट नहीं करने आपने, जस्ट उनका जो बाकी नेम है, जैसे प्रोपाइल है तो P आपने सेलेक्ट करना है, इसका alphabetical order डिसाइड करना है. Methyl isopropyl ether. Who will tell IUPAC name? Just one. हाँ? Methoxy, because second पे अब है methoxy group 1, 2, 3. ठीक है? स्मॉलर ग्रुप को कभी भी देखने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग आप लार्जर वाले ग्रुप में कर लो. दैट विल डिसाइड द नेम. 2 methoxy. मिथाइल नहीं बेटा, methoxy है. OCH3 ग्रुप है ना, अकेला CH3 नहीं है. ये O जो है ये इंक्लूड करना है नेम में. methoxy, ऑक्सी लेकर आए हैं ऑक्सीजन के लिए. Now suppose if we have this kind of group, पहले एक ही तरफ करना चाहिए. अब इसमें दोनों साइड पे ऑक्सीजन के 3 कार्बन वाले ग्रुप्स प्रेजेंट है, प्रोपाइल ग्रुप्स. But this is isopropyl, this one is normal propyl. The common name will be isopropyl normal propyl ether. Common name में प्रॉब्लम नहीं है. IUPAC name जो आएगा that will be. अब आपको ये देखना है कि इधर से methoxy ग्रुप को अगर हम नंबरिंग देते हैं तो ये फर्स्ट पे आता है. If we select this chain, then here we will have at second position. So obviously we will select that chain जहाँ से lowest number मिल रहा है उसको ग्रुप को. तो this will be फर्स्ट पे आपके पास जो ग्रुप लगा है, इसमें फर्दर ये जो फर्स्ट पोजीशन इस कार्बन की है, लेकिन यहाँ से ये सेकंड कार्बन से अटैच्ड है. ऑक्सीजन जो है इसके सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है. तो इस ग्रुप का अपना जो नेम होगा दैट विल बी 2 प्रोपॉक्सी. 1 प्रोपॉक्सी का मतलब होता है जब ग्रुप डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड हो.
It is 2-propoxy because the carbon is attached, this oxygen is attached to the second carbon of this alkyl. So this group itself will be named as 2-propoxy और इस तरह के जो branched alkoxy groups होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखना है और इसकी पोजीशन बाहर आएगी 1,2-propoxy प्रोपेन. आप इसको 1 को रहने भी दे सकते हो, बुक्स में आपको 2-propoxy प्रोपेन भी मिल जाएगा, then it is also correct. ठीक है, 2-propoxy propane will be the name of this. ये क्लियर हुआ आपको ये 2-propoxy क्यों आया? बिकॉज सेकेंड नंबर पे इस ग्रुप के ऑक्सीजन अटैच है और इस मेन चेन के ये फर्स्ट पोजीशन पे है. तो इट इज बेटर इफ यू राइट 1 here. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इसकी फर्स्ट पोजीशन है वो ब्रैकेट से बाहर है. ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो इस एल्कोक्सी ग्रुप की अपनी पोजीशंस के लिए. ठीक है. Next is suppose we have group like this. दोनों ही जगह पे ब्रांचेस हैं. अभी एक सिंपल कर लेते हैं. Identify these two groups. One is methyl and other one is, ये कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटाइल. 3 डिग्री कार्बन आ गया ना ओ के साथ सीधा और 4 कार्बन है टोटल, तो इट विल बी ए टर्शियरी ग्रुप. टर्शियरी ब्यूटाइल एंड मिथाइल. तो कॉमन नेम विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर. वो मैं लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना. आयुपेक नेम. अब आयुपेक नेम ऑब्वियसली वो लार्जर ग्रुप है. अब उसको नंबरिंग देनी है आपने बिकॉज वो खुद भी ऑलरेडी ब्रांच्ड है और ऑक्सीजन भी फर्स्ट कार्बन पे नहीं. तो यू विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन from any direction. यहाँ से 3 कार्बन है, यहाँ से भी 3 है, यहाँ से भी 3. From all directions it has 3 carbons only. तो select this one. कोई भी select कर सकते हो, सेम ही नेम आएगा. 1, 2, 3. अब इसके पास देखो सेकंड पोजीशन पे एक ये ग्रुप है which is named as methoxy और इसी सेकंड कार्बन पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल. जब इस तरह से मेन चेन के सेम नंबर पे या किसी भी और नंबर पे दो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हो, देन यू डिसाइड अल्फाबेटिकली व्हिच इज टू बी रिटन प्रायो. तो यहाँ पर आपको ये मिथॉक्सी है, वो मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली इट विल कम फर्स्ट. तो 2-methoxy, 2-methyl. पैरेंट नेम क्या होगा? प्रोपेन. एनी डाउट इन दिस? 2-methoxy, 2-methyl propane. किसने कहा था उसको हैंड से पकड़ने के लिए? 2-methoxy, 2-methyl propane. Any doubt? No? हाँ? क्यों? ये O है, उसमें Y है, MITH के बाद. O वाला ही पहले आएगा. Common name? Di-tertiary butyl ether. IUPAC name? दोनों साइड पे सेम है, सिमेट्रिकल ईथर है, तो आप किसी भी एक तरफ की चेन की नंबरिंग कर दो. 1, 2, 3. सेकेंड पोजीशन पे ये फर्दर ग्रुप है. अब पहले क्या करना है आपने, इस ग्रुप की फर्दर पहले नेमिंग कर लो कि क्या है. इसका भी 1, 2, 3 सेकेंड पे मिथाइल लगा हुआ, तो इट विल बी 2-methyl 2-propoxy. ये चीज क्लियर हुई आपको? 2 पे मिथाइल और ये इसके सेकेंड कार्बन पे ही ऑक्सीजन, तो इट विल बी 2-propoxy. जैसे हमने पहले वाले को 2-propoxy रखा था जिसके सेकेंड पे ऑक्सीजन था. अब यहाँ से इसकी पोजीशन भी 2 है, तो
बाहर भी ब्रैकेट के 2 आएगा एंड इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और भी, तो इसको आप पहले लिख लोगे ये, क्योंकि मिथाइल ये भी मिथाइल है और इसके आगे फर्दर कॉन्टिन्यूअस है 2 प्रोपॉक्सी। तो फर्स्ट यू विल राइट 2 मिथाइल। वैसे इतने डिफिकल्ट हम एग्जाम में देते नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी 2 मिथाइल इस ग्रुप के लिए, 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी फॉर दिस एंटायर ग्रुप which is present after oxygen and parent chain is of propane। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। टर्शरी ग्रुप तक बता दिया मैंने, सेकेंडरी तो और थोड़ा सिंपल ही होगा। स्ट्रेट चेन वालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज यू हैव अ चेन ऑफ 7 कार्बन एटम, यहाँ पर एक OCH3 लिखा हुआ है, तो आपने सिंपल नंबरिंग काउंट करनी है। तो नेम विल बी 3-लिथॉक्सीहेक्सेन। ठीक है, लॉन्गर चेन विल बी सेलेक्टेड। यस बेटा, ये वाला इसमें बेटा मैंने देखो एक साइड को हमने पेरेंट नेम देना है, तो ये पेरेंट नेम क्या जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब 2 मिथाइल ये वाला आ गया, इसका प्रीफिक्स प्रोपेन ये चला गया पेरेंट नेम। अब इसके साथ में एक और सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि हम ईथर ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट ही मानते हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसका भी फर्दर ब्रांचिंग है, तो पहले इसका अलग से नेम मैंने आपको बताया था कि इसकी भी नंबरिंग कर दो लॉन्गेस्ट चेन को, जैसे आप कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में नंबरिंग करते हो सेम वे। ठीक है, और उसके बाद इस पे देखो आप किस तरफ इसमें, पर इसकी नंबरिंग आपने ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में करनी है। ये नहीं देखना कि ऑक्सीजन से जो अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो नेम विल बी 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी। ठीक है, दिस वे ये इसका पूरा नेम हो गया। इस नेम को ब्रैकेट में लिखना है, और ये इसकी मेन चेन की कौन सी पोजीशन पे लगा है, दैट नंबर विल बी रिटन फर्स्ट आप बिफोर द ब्रैकेट। तो 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी, और ये 2 मिथाइल था वो हमने पहले लिख दिया, बिकॉज अल्फाबेटिकली इसके बाद ये कंटिन्यू है नंबर, और वो मिथाइल पे एंड हो गया, तो उसको पहले लिख दिया 2 मिथाइल। बट अगर हम इसमें रॉन्ग नहीं करते, अगर आप ये मिथाइल यहाँ भी लिख देते हो, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, नेम तो वही रहेगा, पोजीशंस अगर सेम है। ठीक है, बट थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको डिसाइड करना है, बिकॉज दीज ऑल आर टेकन एज सब्स्टिट्यूएंट्स, कुछ भी इसमें से मेजर नहीं है। Now suppose if you have alcohol and ethers both in a compound, then how to give name? Here we have 2 functional groups in this compound. Major one is superior functional group is alcohol. Ethers है ही नहीं superior functional group में। ठीक है, तो you will start numbering from the side where alcohol gets priority. First number will be given to this carbon, थर्ड पे आपके पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ठीक है, तो इसको प्रीफिक्स में नेम दे देना आपने 3-मिथॉक्सी। ब्यूटेन 1 ऑफ। ठीक है, एनी डाउट? एल्कोक्सी एल्काइल हैलाइड्स, कोई भी ग्रुप आपको मेजर प्रेफरेंस में नहीं लेके जाना। इफ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, then numbering and the parent chain, parent name will be done according, इसके सफिक्स के साथ नेम जाएगा, और इनको आपने फिर प्रेफरेंस नहीं देनी है नंबरिंग के लिए भी। नेम तो वैसे प्रीफिक्स में आता है। ठीक है, नाउ वी कम टू एरोमेटिक ईथर्स। बेंजीन रिंग के साथ अगर ग्रुप्स लगे हैं, this is the simplest aromatic ether, otherwise it is a kind of unsymmetrical ether। एक तरफ बेंजीन रिंग है, एक तरफ इनको एराइल एल्काइल ईथर भी कहते हैं। ठीक है, एराइल ग्रुप भी है, एल्काइल ग्रुप भी है। नेम फिनॉक्सी की मिथॉक्सी, फिनॉक्सी तब करना है जब ये चेन इधर इट हैज 6 कार्बन एटम और अबव। ये एक रूल याद रखो, साइक्लिक कंपाउंड वेदर दे आर एलिफेटिक रिंग्स और एरोमेटिक रिंग्स, अगर रिंग में जितने कार्बन है उसके इक्वल या उससे हायर नंबर ऑफ कार्बन चेन में आते हैं, तो
तो पेरेंट नेम चेन का जाता है, रिंग का नहीं जाता। अभी यहाँ पर जस्ट एक ही कार्बन है, तो पेरेंट नेम विल बी गिवन टू बेंजीन, ठीक है। नेम विल बी methoxybenzene। Anyone who knows the common name, क्योंकि ये पॉपुलर उसी नेम से है, IUPAC has recommended that name as well। पता है किसी को? 11th में बताया हुआ है शाम, एनिजोल। इट इज पॉपुलर विद दिस नेम, और फर्दर जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो एनिजोल की फॉर्म में आप नेम दे सकते हो। बट अगर वो डेरिवेटिव मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे क्लोरो है या कुछ है, बट अगर कहीं फिनॉल या कुछ है, तब फिर इसको मिथॉक्सीफिनॉल ही कहेंगे। सपोज इस तरह से यहाँ OH ग्रुप भी है, तो कंपाउंड का नेम 1, इसको नंबर देके 2 मिथॉक्सीफिनॉल, क्योंकि एनिजोल नेम हमने अदरवाइज नहीं यूज करना अगर कोई और सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है। अगर मिथाइल लगा हुआ है यहाँ पे CH3, then it can be given preference to this, तो 2-methyl anisole आप कह सकते हो, but otherwise 2-methyl 2-methoxybenzene। मिथाइल फिर उसमें बाद में आ जाएगा, मिथॉक्सी पहले आएगा। तो मिथॉक्सीबेंजीन के डेरिवेटिव्स की फॉर्म में भी नेमिंग को प्रेफरेंस मिली हुई है एनिजोल को। बोथ नेम्स यू कैन राइट। This is a simple aromatic ether। Simple इसलिए because दोनों साइड पे सेम ग्रुप्स है। Can anyone tell common name? कॉमन सिस्टम में इस ग्रुप को हम फिनाइल कहते हैं, डाइफिनाइल ईथर। इसका कॉमन नेम था मिथाइल फिनाइल ईथर, so डाइफिनाइल। Can anyone tell IUPAC name? Phenoxybenzene। बाकी तो बेंजीन रिंग के साथ कोई भी आपको सब्स्टिट्यूएंट, इसके साथ सपोज एक चेन है CH CH2 CH4 CH3, तब अगर OCH3 यहाँ पे बेटा, तो फिर आप लाइक इस ग्रुप को प्रीफिक्स देके और ये पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें चेन के अंदर चला गया, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं। तो इस केस में नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस कार्बन। What will be the name? 3-phenoxy 1-methoxy। Alphabetically M पहले आएगा, तो 1-methoxy 3-phenoxy। और तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको सिंपल बहुत है। कुछ एग्जाम्पल्स हम NCERT एक्सरसाइजेस में डिस्कस कर लेते हैं।